express how delightful it is. The people here are so welcoming and so kind. The President and I are grateful to be guests for a beautiful country and to have received such a warm reception during our time here. I learned that your school's name, Sarvodaya, means prosperity for all. As I walked around, I was able to see how the concept exists in curriculum, in the leadership of the teachers, and in the spirit of enthusiasm of the students. A short while ago, I visited a classroom and observed its happiness curriculum. It is very inspiring to me that the students here begin each day by participating mindfulness. From mindful breathing, telling a story to a friend, listening to another classmate, or simply connecting with nature, I cannot think of a better way for all of us to start our day. I also visited one of your primary school reading classrooms and learned about the reading program. Encouraging students to explore books of their own interest is very effective and increases reading habits and life skills. Back home in the United States, I work with children like you to promote similar ideas of well-being through my Be Best initiative. The 3 pillars of Be Best include the dangers of drug abuse, the importance of online safety, and the overall well-being of children. It is my hope that by talking about the values of Be Best with young people in the United States and around the world, our children, teachers, and parents will strive to share them with family and friends throughout their own communities. As I travel around the world, I'm inspired not only by programs like the reading classroom and the happiness curriculum, but also by the people who dedicated themselves to helping children overcome the many issues they face each day. Seeing your programs firsthand and hearing from your dedicated educators has been a great experience and proof that the principles of Be Best are not just limited to the United States, but can be found throughout the world. This school exemplifies that promoting values of kindness, compassion, and respect can bring about positive change within your communities. Before I leave today, I want to thank all of the educators here who are setting positive examples for young people. You for welcoming me to your school. I encourage you to keep working hard every day and want to let you know that what you are learning is valuable and will make a difference in your lives and those around you. As you continue on your path of learning, always remember to be good to each other. And principals and teachers, thank you for what you do to promote healthy and positive examples for our young people in order to provide them with a promising future. Thank you. Thank you so much, ma'am, for interacting with our students and sharing your thoughts and words. It's a matter of great pride and honor for all of us to have you amongst us. Ma'am, the students would now like to present their artwork to you. These are Madhubani paintings. This special art form from Bihar in India is made with natural tools like fingers, twigs, and matchsticks, and made with natural colors from plants,
and other natural sources. So these paintings are prepared by students themselves. Let us give a huge round of applause to our students. Wonderful. दिल्ली के नानकपुरा में गवर्नमेंट स्कूल में मेलानिया ट्रंप वहां बच्चों से बात करते हुए उनके साथ मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि इस तरह का की एजुकेशन दी जा रही है वहां के बच्चों को, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी मानसिक हेल्थ की, उनके ग्रोथ की भी बात हो रही है। वहां धन्यवाद करते हुए सारे छात्र वहां पर प्राध्यापिका के साथ मेलानिया ट्रंप का कि वो उनके स्कूल पे आई। वहां आप स्क्रीन के बाईं तरफ आप देख रहे हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट के लिए तैयारी हो रही है हैदराबाद हाउस में। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो वार्ता है वो अभी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर जो एग्रीमेंट्स और जो डील साइन हुए हैं उसी पर बात उसका ऐलान किया जाएगा और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी पढ़ा जाएगा। अभी आपने देखा तस्वीरों में एक तरफ मेलानिया ट्रंप हैं और बाईं तरफ आप देख रहे हैं उनकी पुत्री इवांका ट्रंप बैठी हैं अपने शौहर अपने पति जैरेड कुशनर के साथ। ये पूरा परिवार जो है ट्रंप का क्लोज सर्किट है, उनका परिवार भी है और सर्कल भी है जिनके जो सारे फैसले हैं वो इनसे सलाह कर लेते हैं। और बहुत अहम है इस वक्त जो डील साइन होंगी वो भारत के हित में कितना होगा, कितना भारत को इससे फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंक से लड़ने के लिए और हमारे देश को और भी सुदृढ़ और सक्षम बनाने के लिए हमारी नेवी को और स्ट्रॉन्ग बनाने की भी वहाँ पर पहल होगी। एक बहुत बड़ी डील है MH-60 चॉपर्स की जो कि साइन होगी $3 बिलियन की। जो दाईं तरफ की तस्वीरें हैं बहुत ही मोहक तस्वीरें हैं। मेलानिया ट्रंप आगे चलकर आती हुई और फिर सभी छात्रों से बात करती हुई, सबको अलविदा कहती हुई, बाय कहती हुई, हाथ मिलाकर सबसे सारे बच्चों से मिलने के बाद वो अब हैदराबाद हाउस की ओर चल पड़ेंगी थोड़ी देर में। अमिताभ, अगर हम बाईं तरफ की जो चित्र हैं उस पर गौर करें तो भारत के लिए और अमेरिका के लिए जो टाइज हैं वो अगले लेवल पर जाने वाली बात होगी। वहाँ छात्र थोड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। जो सीक्रेट सर्विस होगी उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी इन छात्रों को पीछे रखने में। मेलानिया ट्रंप सबसे हाथ मिलाती हुई बहुत ही मोहक तस्वीरें हैं। लगता है मेलानिया ट्रंप को बहुत मज़ा आया इन बच्चों के साथ मिलकर, उनके साथ समय बिताने में। बट अमिताभ, अगर हम बात करें कि थोड़ी ही देर में बाईं तरफ हम तस्वीरों में देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, दोनों चलकर आएंगे और जॉइंट डिक्लेरेशन की बात होगी और एग्रीमेंट्स की बात होगी जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं। बहुत अहम है। ये दिखाएगा कि किस हद तक ये बातें आगे बढ़ी हैं और किन चीज़ों में समझौता हो रहा है। खासकर जो संकेत सीधे दिए हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने वो रक्षा समझौतों को लेकर दिए हैं और ये बात साफ हो भी चुकी है कि इन रक्षा समझौतों के बाद भारत और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रक्षा सामग्री सप्लाई करने वाला देश बन जाएगा, रूस को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए। रूस जो भारत का बहुत पुराना सहयोगी है, तो जाहिर तौर पर अमेरिका ने भारत के सामरिक महत्व को पहचाना है। आनंद, अमेरिका ने भारत के उस इम्पोर्टेंस को पहचाना है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है। भारत के इंडो पैसिफिक रीजन में जापान और चाइना के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए बहुत बड़ा महत्व का हिस्सा माना है। पाकिस्तान में जो इस्लामिक रेडिकल टेरर की बात की थी राष्ट्रपति ट्रंप ने, उस पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। और भारत एक इतना बड़ा बाजार है कि अमेरिका की तमाम कंपनियों को यहाँ अगर व्यापार करें तो राहत मिल जाएगी। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को लगातार आगे बढ़ाती जा रही हैं। और पिछले
एक दशक में जो व्यापार है वो $65 बिलियन तक जा पहुंचा है, जिसमें भारत का हिस्सा भी, भारत भी काफ़ी बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप टफ निगोशिएटर, जिनसे डील करना आसान नहीं होता, कल अपनी रैली में ये कहा है 1.25 लाख हिंदुस्तानियों के सामने उस मोटेरा स्टेडियम में। इसका मतलब साफ है कि भारत के हितों की रक्षा करने में और भारत के हितों को बारीकी से अध्ययन करने में प्रधानमंत्री मोदी कभी पीछे नहीं हटते। ये राष्ट्रपति ट्रंप का एक बहुत बड़ा आप समझ लो कि एक ग्रीन कार्ड है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो देश हित के बारे में सोचते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर अमेरिका कह रहा है कि भारत ने उसकी नाक में दम कर रखा है टैरिफ्स की वजह से और ट्रेड की वजह से, यानी कि भारत ने अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया, अमेरिका के प्रेशर पर भी भारत झुका नहीं है। खासकर डेटा सॉवरेंटी की अगर बात करें, डेटा की सुरक्षा की अगर बात करें, खासकर हमारे फार्मर्स और जो ई कॉमर्स में जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को जो तकलीफ होगी, इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो इन चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात है। विक्रांत यादव भी हमारे साथ हैं, विक्रांत और संदीप बोल भी हमारे साथ हैं। जरा विक्रांत से भी जानेंगे। विक्रांत, सबसे बड़ी बात यह है, जो मेलानिया ट्रंप की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट की स्कूल्स के अंदर जो एजुकेशन दी जा रही है, जो हैप्पीनेस क्लास दी जा रही है, बहुत बड़ा थम्स अप है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की छवि दुनिया भर में इन कक्षाओं के अंदर से जो मेलानिया ट्रंप की तस्वीरें जा रही हैं, उससे भारत की छवि भी ऊपर उठेगी, क्योंकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना बढ़िया है इसकी भी बात दुनिया करेगी भारत में। देखिए आनंद, कल जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहे थे उस समय उन्होंने मेलानिया ट्रंप के बारे में जब बात की थी तो ये कहा था कि बच्चों के लिए, बच्चों के कल्याण की दिशा में आप जो काम कर रही हैं वो काफ़ी सराहनीय है। और आज मेलानिया ट्रंप जब वहाँ पर पहुँची, यूएस फर्स्ट लेडी, और स्कूल में, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली सरकार का सरकारी स्कूल, तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि देश के लिए गर्व की बात है कि उसके सरकारी स्कूल का एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा करिकुलम जो हैप्पीनेस क्लास के रूप में पूरे स्कूल में पहली से लेकर के 8वीं तक के क्लास के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। और हर रोज पहला पीरियड इसी क्लास का होता है, जिसमें बच्चों को 2-3 चीजें करवाई जाती हैं। मेडिटेशन करवाया जाता है, बच्चों को ये खुश रहना सिखाया जाता है और किस तरीके से परीक्षाओं के दौरान तनाव ना लें, पढ़ाई के दौरान तनाव को अपने दिमाग पर ज़्यादा उसे ऊपर ना आने दें, किस तरीके से दोनों चीज़ों में एक समन्वय बना के रखा जाए, ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। और आनंद, सिर्फ 18-19 महीने पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस हैप्पीनेस क्लासेस की शुरुआत की गई थी। देश विदेश में इसकी चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन अब यूएस फर्स्ट लेडी का वहां पर जाना, उन बच्चों के बीच में घुल मिल करके देखना और बाकायदा ये देखना कि किस तरीके से ये हैप्पीनेस क्लास दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर इस कदम को दिल्ली सरकार के लिए भी काफी सराहनीय है और केंद्र सरकार के लिए भी। निश्चित तौर पर अब कई और राज्य सरकारें भी इस तरीके के जो कोर्स हैं वो अपने यहाँ शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है वो भी इसमें पूरी हो रही है। जी, मैं इसी की बात कर रहा था कि देखिए, अभी 1 महीने पहले ये सांप और नेवले की तरह लड़े हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी। सेंटर और आम आदमी पार्टी के बीच में पिछले 3-4 सालों में हमने बहुत सारा फ्रिक्शन देखा, लेकिन अब जो आगे बढ़ने की बात यह हुई है कि देश हित में, जनहित में जो काम हो रहा है उसको साथ में प्रोजेक्ट किया जाए। जब आप भारत बनकर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको एक होकर प्रस्तुत होना है और जो अच्छी चीजें हैं, हर कोई अपने अपने लेवल पर देश के लिए और लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहता है, तो उसको साथ मिलकर दिखाना, यही बात, ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ये जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना। विक्रांत, देखिए बिल्कुल आनंद, और आपने देखिए कि इस तरीके की बीच में कुछ खबरें आई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया। किसी भी तरह के विवाद में आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं पड़े, और उनके अगर आज के भी ट्वीट देखें तो उसमें उन्होंने साफ ये कहा है कि दिल्ली के लिए गर्व की बात है कि फर्स्ट लेडी वहाँ पर जा रही है। और अगर दिल्ली के किसी स्कूल की बात होती है तो निश्चित तौर पर ना ये सिर्फ दिल्ली की छवि आगे नहीं बढ़ती है, पूरे देश की छवि बढ़ती है। इस बात को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी समझती है, उनके सरकार के नुमाइंदे भी समझते हैं, और इसी बात को लेकर के वो इस बात पे कोई आधिकारिक उनकी तरफ से आपत्ति नहीं जताई गई। ये एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली, और उसके बाद ये सब चीज़ें, इस तरीके का पूरा रिएक्शन सामने आना, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो चुनाव के दौरान निश्चित तौर पर कई तरीके की बातें होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन वो चुनावी राजनीति होती है। एक बार चुनाव संपन्न होने के बाद देश में सभी को अपने हिसाब से देश को आगे बढ़ाना है। आज दिल्ली सरकार को जिस तरीके से दिल्ली में जो कुछ घटनाएं नॉर्थ ईस्ट में लगातार हो रही
रही हैं, उसको लेकर के दोनों के बीच में पूरा एकदम केंद्र सरकार के साथ समन्वय बना करके वो काम कर रहे हैं और बाकायदा मीटिंग में एक दूसरे को पूरा सहयोग देने की बात की गई। विक्रांत, मैं आपसे हटूंगा क्योंकि हैदराबाद हाउस में अब चहल पहल है। अब ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में बाहर निकलते हुए। अब यहाँ पर बायलैटरल एग्रीमेंट्स में क्या क्या बातें तय हुई हैं उस पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन होगा और कुछ हुए हैदराबाद हाउस के अंदर अब भोजन होगा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप लौटेंगे अपने होटल, जहां शाम को 5 बजे वो प्रेस को संबोधित करेंगे। संदीप बोल और अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप बोल, डिफेंस के हिसाब से अगर कहें, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को फिर से लताड़ लगाई गई है, फिर से बात की गई है कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई होगी, बिल्कुल ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई होगी, नार्को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई होगी और सबसे ज्यादा ये जो है, ये प्रोग्रेशन जो है, ये वहीं पाकिस्तान से ही आता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी आज भी कहते हैं ब्लैक मनी यानी ड्रग मनी से चल रही है। बिल्कुल आनंद, इस तरीके का संदेश जो है कल ही दिया था राष्ट्रपति ट्रंप ने और आज भी जो है जब साझा बयान जारी किया गया, दोनों जो नेता हैं उन्होंने मीडिया के सामने उस मीटिंग के बारे में, उस वक्त भी जो है पाकिस्तान का जिक्र किया गया। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को इस बात को अब समझ लेना चाहिए कि जो आतंकवाद की जो नीति है वो नहीं चलने वाली है, खास तौर पे कि अगर जो इस्लामिक टेररिज्म की बात खुद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कही, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान से उठ के ही इस पूरे रीजन में जो है उसको डिस्टर्ब करता है और उसका सीधे तौर पर जो है कह सकते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने दे दिया। दूसरी चीज, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर्स की डील, ये हेलीकॉप्टर्स की डील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडियन ओशन है, संदीप अखाड़ा में एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे विस्तार से अमिताभ सिन्हा और संदीप बोल के साथ। क्या कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जॉइंट डिक्लेरेशन में हैदराबाद हाउस पर। बने रहिए हमारे साथ।